Bismillahirrahmanirrahim. Life history of Albugo candida, which caused white rust on crucifers. Lesson number 9: Mycology and plant pathology. Albugo candida habitat. Albugo derived from a Latin word means white. Only genus of family Albuginaceae. More than 25 species. They have act as an obligate parasite of crucifers. Turnip, mustard, radish, cabbage, cauliflower. These are the species of crucifery family. Some species cause white rust disease. However, it has also been reported on some members of family Asteraceae, Compositae, Convolvulaceae, and Chenopodiaceae. But main is the crucifery. Symptoms of white rust disease caused by albugo is commonly known as white rust. It produces shiny, white, smooth, irregular patches, pustules, or blisters on the leaves, stem, and other aerial parts of the plant. Pustules are initially formed on the lower surface of the leaf, what may be present on both surfaces. Other effects include hypertrophy and galls. Hypertrophy means abnormally enlarged growth, and galls is also the enlarged size of a plant organ, leaf, or some other parts. These are known as galls or hypertrophy. And symptoms of white rust: abnormally increase in size of the cells and the organ is known as hypertrophy. यानी abnormally अगर साइज जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज कर जाए तो हम इसे हाइपरट्रॉफी का नाम देते हैं. Galls are cystidia are kind of swelling growth, abnormal growth on the external tissues of plants. Severe infection causes proliferation of lateral buds, discoloration of flowers, malformation of floral flowers, and sterile gynoecium. ये जो है वाइट रस्ट की सिम्टम आपको नजर आ रही हैं. वाइट पोस्ट्यूल्स, वाइट पैचेस बने हुए हैं, और ये आपको जो लीफ नज़र आ रही हैं ये क्रूसीफेरी फैमिली यानी मस्टर्ड के हैं या किसी भी शलजम वगैरह के इन क्रूसीफेरी के मेंबर्स पर ये अटैक करते हैं. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्ब्यूगो: थैलस इज यूकार्पिक एंड mycelium. Hyphae are intercellular, coinocytic, aseptate, and branched. Cell wall is composed of fungal cellulose, not chitin, as in fungi. Reserve food material is in the form of oil drops and glycogen bodies. देखें जी, ऑयल ड्रॉप्स एंड ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल्स में होता है, जबकि प्लांट्स में जो है वो स्टार्च फॉर्म में होता है. तो फंगस में जो है वो आपको पता है ऑयल ड्रॉप्स बाजू का ग्लाइकोजन वगैरह पाया जाता है. इसमें ग्लाइकोजन बॉडीज हैं जो कि एनिमल से काफ़ी रिजेम्बलेंस रखती हैं. इंट्रा सेलुलर इज इन द फॉर्म ऑफ लोब लाइक हेस्टोरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम दी हो सेल. वैसे तो ये इंटरसेलुलर हाइफी हैं, यानी हाइफी सेल के इन बिटवीन एरिया में ग्रो करते हैं, बट इसके कुछ पार्ट जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं जो कि नोब लाइक हास्टोरिया या हास्टोरियम सिंगुलर बनाते हैं, जो कि होस्ट सेल से फूड वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस की जाती है. तो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम हास्टोरिया जो कि नोब लाइक हैं आगे से, बाकी जो इनकी हाइफी हैं वो इंटरसेलुलर ग्रो करते हैं होस्ट बॉडीज में. Asexual reproduction in Albugo candida. The asexual reproduction takes place by means of biflagellate zoospores. Biflagellate zoospores form inside the sporangia, कोनिडिया भी हो सकते हैं. Hyphae grow just beneath the epidermis of the infected leaf. यानी जो है epidermis है, lower epidermis जो है उसके बिल्कुल नीचे इसके जो hyphae grow करते हैं. From these hyphae aerial sporangio force या conidiophores come out. They are about a dozen nuclei and sufficient cytoplasm in each sporangiophore. यानी coinocytic formation में जो होते हैं. The terminal end of the sporangiophore becomes constricted and sporangium contains 5 to 8 nuclei and cytoplasm. Successively, the sporangia develop by constriction method in bacigenous manner. Bacigenous chain means the newly formed remains at the base.
and oldest is at the top end. These are in chain formation. This is the newly formed and this is the oldest. यानी जो भी न्यू बनेगा वो इससे और वो ऊपर होगा तो नीचे से न्यू बनेगा. इसका जो अपर एंड होता है वो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में ये एक चेन में प्रोड्यूस करते रहते हैं. दिस इज दी होस्ट टिश्यू. इन बिटवीन हाइफी आप नजर आ रहे हैं, आपके इसके सेल होस्ट के सेल्स नजर आ रहे हैं. हाइफी ग्रो कर रहा है. हाइफी ग्रो करने से उसके स्पोरेंजियोफोर बने. स्पोरेंजियोफोर ने जो एपिडर्मिस है उसको बस्ट किया, कम आउट बाहर आ गए और इस तरह इसकी चेन में आपको इसके बहुत से स्पोरेंजिया नजर आ रहे हैं. स्पोरेंजिया इन बेसिजेनस चेन. और स्पोरेंजिया जो है वो कॉलवेट स्पोरेंजियम ये आपको नजर आ रहे हैं. और इस तरह से डी फॉर्म में ये एक कंस्ट्रक्टेड मेथड आपको दिखाया गया है कि ऊपर से ये कंस्ट्रक्शन फॉर्म होती है और जहाँ से फिर ये अलग हो जाते हैं और ये जुड़े रहते हैं बिकॉज जिलेटिनस मटेरियल रिमेन अटैच टू देम इन चेन्स. ये देखें अब चेन बन गई है. ज़ूओस्पोर्स जहाँ से फॉर्मेशन हुई है, ज़ूओस्पोर बाइफ्लैजिलेट्स होती हैं और जो बाइफ्लैजिलेट जो होती हैं वो अपना फ्लैजिला जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में उतार कर सिस्ट यानी एक सख्त जो है वो दीवार सी बना देते हैं जो कि खुश्क होती है, वार्टी होती है और ये इंसिस्टेड हो जाते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं. जब फेवरेबल कंडीशन जो होती है दोबारा रिटर्न होती हैं तो ये जर्मिनेशन बना के पूरी दोबारा फिर जो है फंगस बॉडी बना देती है. तो ये था इसमें जो आपको डायग्राम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई. इसी तरह से in between each two sporangia, a gelatinous pad develops acting as a separator of two sporangia from each other. यानी दो के दरमियान जो है वो gelatinous pad है जिसकी वजह से वो जुड़े भी रहते हैं और जो अलग भी है. The sporangium is smooth, double-walled and rounded. Large number of sporangia cause the pressure on host epidermis that ruptures, then undergoes hundreds of sporangia are seen on the surface of host in the form of white creamy powder forming pustules. Sporangia are transferred from one place to another by various agencies such as wind, insects, water. On the maturation of a sporangium, this protoplast is cleaved into uninucleate protoplast. Each protoplast metamorphoses into a naked biflagellate uninucleate ramiform and vacuolate zoospores. रेनिफॉर्म. दी रेनिफॉर्म का मतलब है जी ये किडनी शेप्ड है. वैक्यूलेट है. स्पोरेंजियम बर्स्ट इंटीरियरली and the zoospore liberate in the film of water. The flagella are withdrawn and zoospore become encysted. cyst formation हो गई है. और जब ये दोबारा फेवरेबल कंडीशन में किसी होस्ट टिश्यू को देते हैं तो ये जर्मिनेशन दिखा. जर्मिनेशन से पहले ये जर्म ट्यूब बनाते हैं और एक एप्रिसोरियम प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये होस्ट की टिश्यूज में इंटर हो जाते हैं बाय द स्टोमेटल पोर. लोअर सरफेस में आप जानते हैं कि स्टोमेटल पोर जो होते हैं वो काफ़ी तादाद में होते हैं एंड दे then produce intercellular hyphae. Intercellular hyphae, small hyphae are also be produced. They are known as lobe-like astoria that by means of absorbing food from the host. Each ancestor protoplast germinate producing a germ tube on the surface of suitable host. Germ tube enter through stomata, clay develops into tube mycelium and ramifies in the intercellular spaces of the host tissue. Sometimes the sporangia behave as conidia and germinate directly, producing germ tubes. The conidia may germinate from 3 to 25 degree temperature, but the optimum temperature is 10 degrees centigrade. Sexual reproduction. Sexual reproduction is oogamous. ओवगैमस मीन के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ओवगोनिया में ट्रांसफर किए जाते हैं. सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन द हाइफल एंड्स present in the intercellular spaces of the deeper tissues of petioles and stems. The female sex organs are oogonia and the male sex organ are antheria. Oogonia is rounded and antherium is globe-shaped. Developing oogonia and antheria are separated from the rest of the mycelium by septa. Female gametophyte. On maturation, protoplasm of the oogonium differentiate into two regions. Outer region is called periplasm, containing the cytoplasm, many nuclei and many vacuoles
having the central protoplasm with the denser consistency surrounded by periplasm is called oosphere or the egg. Oosphere contains one female nucleus in it called the ooplasm. In the beginning of the development of the oogonium, there are many nuclei which degenerate soon, leaving one functional female nucleus. This is the diagrammatic view of Albeuco candida life history. ओवगोनियम विद मैनी न्यूक्लाई, ओवगोनियम है ये आपको जो ए डायग्राम नजर आ रही है। ओवगोनियम जो है वो एंथीडियम की तरफ जो है वो रिसेप्टिव फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टिव स्पॉट टुवर्ड द अटैच्ड एंथीडियम। सी डायग्राम में आप देख रहे हैं न्यूक्लाई इन द एंथीडियम एंड ओवगोनियम, इसमें भी बेशुमार न्यूक्लाई है और इसमें भी है, लेकिन जो डी डायग्राम है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, अब इसमें डी और ई में फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब एंड माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लाई ऑफ ओवगोनियम इन द पेरिफेरल रीजन लीविंग सिंगल फीमेल न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ ओवगोनियम। यानी सबसे पहले जो पेरिप्लाज्म में और फिर जो है वो इंटर होता है पेरिफेरल रीजन में। ई डायग्राम, एफ डायग्राम में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस यानी ओवस्पोर फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई है, जिससे जो है वो यहाँ समझे कि जाइगोट प्रोडक्शन हुई है। ओवस्पोर फॉर्मेशन एंड कैरियोगेमी टेक्स प्लेस, मैच्योर ओवस्पोर इज टू बी फॉर्म्ड। डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम, मेल गैमेटोफाइट। Anthedium develops on the terminal end of another hyphae line very close to oogonium called enthediophore. Hyphal and walls becomes club-shaped and separated from rest of the mycelium by septum, जहाँ पे septa formation हो जाती है। This swollen multinucleate club-shaped portion is called anthedium. Fertilization now. Anthedium attaches itself to oogonium wall. At the point of contact, fertilization tube develops from the anthedium. Fertilization tube penetrates the oogonium wall and reaches the oosphere, through the periplasm से होते हुए ये oosphere तक पहुंच जाता है। One functional male nucleus transfer through the tube reaches the egg, fuses with female nucleus. Rest of the nuclei of the anthedium degenerate. एक ट्रांसफर हो गया, ज़्यादा ट्रांसफर हो गए, एक जो है फ्यूज हो गया, बाकी डिजेनरेट हो गया। This is the whole life cycle of this Albeuco candida. This is the asexual reproduction and this is the sexual reproduction। यानी ये जो है इसकी हाइफी जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में सेल्स के जो होस्ट सेल्स है उसमें ग्रो किए हुए हैं, और कुछ एरियाज में आपके होस्टोरिया भी आपको नजर आए जो कि इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये हाइफी जो है स्पोरेंजियोफोर हाइफी प्रोड्यूस करते हैं, जिनके ऊपर टर्मिनल एंड पे जो है बेसिजेनस चेन फॉर्मेशन में स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और उनसे निकलते हैं जूओस्पोर। जब वो बर्स्ट होते हैं, जूओस्पोर जो है वो रेनी फॉर्म है यानी किडनी शेप्ड है और बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है। वो अपने फ्लैजिला जो है वो ख़त्म करने के बाद इंसिस्टेड हो जाते हैं और फिर वो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके दोबारा होस्ट पे अटैक कर देते हैं। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि एक ओगोनियम प्रोड्यूस हुए हो गया है और एक एंथीडियम। जहाँ पे आपको सेप्टा फॉर्मेशन नजर आ रहा होगा कि इसकी बेस पे सेप्टा फॉर्मेशन, ओगोनियम जो है वो उसको ओगोनियोफोर हाइफी से अलग और एंथीडियोफोर हाइफी से इसको अलग करता है। मल्टी न्यूक्लिएट जैसे स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट की। यूनिन्यूक्लिएट गैमेटोफाइट जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इसके दो इसके जो है एरियाज हो जाते हैं। ऊपर वाला एरिया जो है वो पेरिप्लाज्म और इनर वाला ओवस्फेयर। ओवस्फेयर में आपको एग सेल भी नजर आ रहा है। दिस इज दी गैमेटो मेल फीमेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट में आप नजर आ रहे हैं कि बहुत सारे न्यूक्लाई हैं एरिया में, लेकिन कुछ एक न्यूक्लाई जो है वो नुमाया है ज़्यादा, तो वो क्या है, वो मेल न्यूक्लियस है। इस तरह से ये जब ये फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होती है फ्रॉम दी एंथीडियम, जहाँ से जो है वो मेल जो गैमेट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं और फिर उनकी फ्यूजन होती है यानी कैरियोगेमी होती है। यहाँ पे कैरियोगेमी के बाद वो डिप्लॉयड फेज जो है वो उसका प्रोड्यूस होता है। डिप्लॉयड फेज में वो
जो है फिर मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद जो है वो बहुत सारे इसमें से क्या निकलते हैं, बाइफ्लैजिलेट ज़ूओस्पोर, जो कि रेनिफॉर्म है, किडनी शेप्ड है। फिर ये अपने फ्लैजिला उतार देते हैं और इंसिस्ट हो जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होने के बाद ये पोस्ट पर जो है वो दोबारा जर्मिनेट हो जाते हैं। Development of ovispore. Ovispore is thick wall and three layered. Outermost thick layer of the wall is warty. Warty mean खुश्क है और ये हफाजती लेयर है in the albugo candida. The ovispore contain large diploid nucleus. Prior to germination, zygote nucleus divides rapidly, producing 32 nuclei. First division is meiotic. This is the graphic diagram. जो है इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं कि हो साइटोसिस, मीडिया फॉर्मेशन, ज़ूओस्पोर एंड सो ऑन. दिस इज द स्ट्रक्चर. दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको एल्जीरियम फर्टिलाइजेशन ट्यूबोस्फीयर, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद ओविस्पोर फॉर्मेशन, और ये जो है ये डिप्लॉयड फेज है. मियोसिस, और मियोसिस के बाद इसके ज़ूओस्पोर, ज़ूओस्पोर के बाद इंसिस्टेंट रेस्टिंग ज़ूओस्पोर्स जो कि इंसिस्ट हो जाती है, और फिर जर्मिनेशन फेवरेबल कंडीशन और दोबारा इसकी फॉर्मेशन. जर्मिनेशन ऑफ ओविस्पोर. ओविस्पोर्स आर perinating bodies and survive in inverse environmental condition. 32 nucleate ovisphere undergoes a period of rest. अभी तक ओविस्पोर है यानी डिप्लॉयड ज़ाइगोट जिसे आप कहते हैं, उसमें 32 न्यूक्लाई प्रोड्यूस हो चुके हैं पीरियड ऑफ रेस्ट एंड, लेकिन उसकी जो पहली डिवीजन है उसमें अपना वो मियोसिस हो चुकी है एंड जर्मिनेट्स ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर. Outer warty wall of ovispore burst and the thin membrane of sessile vesicle comes out of the ovispore. Prior to extrusion of the contents in the vesicle, the nuclei undergo the mitotic division repeatedly and a large number of uninucleate bits of protoplasm are produced. अब यानी हर एक न्यूक्लाई के ऊपर साइटोप्लाज्म जमा हो जाता है और वो एक एक न्यूक्लाई वाला जो है वो उसमें वो प्रोड्यूस हो जाता है. ईच बिट मेटामॉर्फोस, अब में उसकी मेटामॉर्फोस होती है यानी हर न्यूक्लाई और उसके ऊपर थोड़ा साइटोप्लाज्म वो अलग-अलग हो गया. Into a biflagellate reniform kidney shape, naked uninucleate and single vacuolate zoospores are formed. Each ovispore produces 40 to 60 zoospores. After extrusion from the ovispore, अब वो इनकी जो है वो रिलीज हो गई है. Vesicle burst and zoospores deplete in the film of water where they move about with the help of flagella, swim about in cyst. अब ये cysted हो जाएंगे यानी cyst formation कायम कर लेंगे and germinate producing the germ tube on the suitable host. Germ tube enters through the stomata. स्टोमेटा के रास्ते से इंटर होगी और इंटरसेलुलर स्पेस में ग्रो करेगी. इंट्रासेलुलर जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगी, हास्टोरियम. डेवलप्स इनटू न्यू माइसिलियम व्हिच रेमिफाइज. रेमिफाइज मीन ब्रांच ऑफ, उसकी ब्रांचेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द होस्ट टिश्यू. Ovispore remain dormant in soil and infect the plants next year. कंट्रोल भैया. Disease may be controlled by following methods. By crop rotation. क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक ही फील्ड में आप एक ही क्रॉप हर साल लगाते रहेंगे तो उसके जो स्पोर्स हैं वो अगले साल नेक्स्ट ईयर तक वहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन में सर्वाइव करते रहते हैं. तो आप जिस फील्ड में एक मतलब आपने कोई क्रॉप लगाई है, क्रॉप ए लगाई है जिस फील्ड में क्रॉप, तो अगले साल ये क्रॉप ए आप किसी दूसरे फील्ड में लगाएं और जहाँ पर क्रॉप बी या क्रॉप सी लगाएं. इस तरह से क्रॉप रोटेशन करती रहें हर साल, जिससे ये काफ़ी जो है वो मदद मिलती है. बाय एरेडिकेटिंग इन्फेक्टेड प्लांट्स. अगर इन्फेक्टेड प्लांट आपको मिलते हैं, आप उनको ज़मीन में दबाने की बजाय आप उनको इस तरह से तलब करें जैसे आग लगा दें या ऐसी जगह उसको दबाएं जहाँ जो क्रॉप से दूर हो. लेकिन दबाने से बेहतर है कि उनको जलाना ज़्यादा बेहतर है. प्लांट्स को, इन्फेक्टेड प्लांट्स को उखाड़ के उनको जलाना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज उनके स्पोर्स और उनकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं जिनमें उनकी रेस्टिंग हाइफी है वो सारे चल गए, ख़त्म हो जाए. बाय सेपरेटिंग फंजीसाइड्स सच एज बोरडॉक्स मिक्सचर. थैंक यू.